Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In the previous lecture, we have studied foreign direct investment, role of foreign capital, also multinational companies. In this lecture, we will study export and import policy. See, to understand import and export policy, at first we need to understand export and import of India. See, in the previous lecture we have studied that when residents of India sells or purchase the products, goods and services with residents of other countries, then this is known as the foreign trade of India. And foreign trade of India, or we can say foreign trade, has two components. First is import, second is export. So at first we will understand import. See, when we get or we purchase the goods and services from the abroad into India, then this is called here the import. And import is of two types, bulk import and non-bulk imports. So first is bulk import. See, when we purchase the goods and services in abundant quantity, or we can say that in large quantity, right? So when goods and services are purchased on large quantity, then this is known as bulk import. For an example, we purchase large amount of petroleum, oil and lubricant, and in short these are known as POL. P for petroleum, O for oil, or L for lubricant. Also, we purchase at a large amount the consumption goods like edible oil, sugar, etc., and fertilizers and iron and steel, and these are known as non-POL, which means that non-petroleum, oil and lubricant items. Now, second is non-bulk import. So when we purchase a limited quantity of a particular goods or services, then this is known as non-bulk import. For an example, capital goods such as metals, machines and mechanical tools, electronic and non-electronic machinery and equipment. So these are capital goods. Second is diamond, precious stones and gems, and third is organic and inorganic chemicals, also cotton textile, cashew nuts and other commodities, right? So this was the definition of import, right? Now we will understand who are the top import partner of India, and this question can be asked in the examination under 3-marker question or 5-marker question. Question can be asked, write down the 5 top import partner of India, right? So we will study. So the top import partner of India 2018-2019. See, यहाँ पर you need to remember the 2019-2020 data also. यहाँ पर जो available data था वो 2018-19 का था, which I am going to provide you. हो सकता है कि समय के साथ में आप ये जो है जानकारी इसको अपडेट कर लीजिएगा, राइट? सो टॉप पार्टनर ऑफ इंडिया या टॉप इंपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया regarding 2018-19. So the first is China. अब चाइना से जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका 13.68, विच मीन्स दैट 13.68% ऑफ द टोटल इंपोर्ट इज विथ चाइना. सेकेंड हो जाएगा अमेरिका, जिससे हम जो है कुल इंपोर्ट का 6.92% इंपोर्ट अमेरिका के साथ में होता है. यूएई के साथ में 5.70% इंपोर्ट करते हैं. सऊदी अरबिया से कुल इंपोर्ट का 5.50 जो 4% है वो सऊदी अरबिया से होता है, और इराक से 4.435, राइट, 4.35% फ्रॉम इराक. अब यहाँ पर ये जो थी हमने बात की थी, दीज वर द top import partner of India. Now we will discuss what are the commodities or what are the goods or services we import from the other countries. And if we talk about the 2018-19 data, then we purchase at a large amount the petroleum and related products. So
जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है वो क्वांटिटी किसकी होती है, या जो है सेक्टर, वो हो जाएगा हम पेट्रोलियम और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सबसे अधिक जो है इंपोर्ट करते हैं। देन कैपिटल गुड्स, देन जेम्स एंड ज्वेलरी, देन केमिकल प्रोडक्ट्स हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाएगा। और अगर ओवरऑल देखें सो इंडिया इंपोर्ट्स 6000 आइटम्स फ्रॉम 140 कंट्रीज, राइट। उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, देन कैपिटल गुड्स, देन जेम्स एंड ज्वेलरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट, राइट। whenever we produce a particular good and service, goods and service, if the good and service is in surplus, then definitely we sell or we send this goods and services to the other foreign country, then this is known as here export, राइट। और इंडिया से जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है, वी कैन डिवाइड द एक्सपोर्ट्स इन 4 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनमें वी एक्सपोर्ट और इंडिया एक्सपोर्ट कॉफ़ी, टी, टोबैको, कैश्यू नट्स, राइट, स्पाइसेस, शुगर, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड इज ओर्स एंड मिनरल्स, राइट। इंडिया में कई जो है ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो एबंडेंट हैं, और हमारे पास में जो भी सरप्लस मेटल्स होती हैं, ओर्स होती हैं, बी एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज लाइक माइका, राइट, कास्ट आयरन, मैग्नीज ओर एंड कोल etc. These minerals and ores are exported to other countries. Third is manufacturing goods, और manufacturing goods में क्या हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल हो जाएगा, राइट, कॉटन टेक्सटाइल, देन रेडीमेड क्लॉथ्स हो जाएगा, फिर आइटम्स मेड ऑफ जूट, राइट, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम्स, कॉटेज एंड क्राफ्ट आर्टिकल्स, लेदर एंड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैन्युफैक्चर गुड्स के तहत जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही इंडिया एक्सपोर्ट मिनरल्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स आल्सो। नाउ वी विल सी who are the top export partner of India. So if regarding the data of 2018-19, the top export partner of India are, फर्स्ट इज अमेरिका, और हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 15.88% जो है एक्सपोर्ट वो अमेरिका से किया जाता है। देन यूएई 9.13%, फिर चाइना 5.07%, हांगकांग 3.94% एंड सिंगापुर 3.15% जो है वो हम एक्सपोर्ट सिंगापुर के साथ में करते हैं। अब इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट गुड्स, राइट, तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफाइंड पेट्रोलियम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बी इंपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड बी आल्सो एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि समझिए, इंडिया इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। तो हम कच्चा जो ऑयल है, ये क्रूड ऑयल, वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, देन बी प्रोसेस, राइट, वी रिफाइन इट, और जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, सरप्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वी एक्सपोर्ट देम, राइट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इंडिया के पास में, इंडिया हैज़ अ ह्यूज ऑयल रिफाइनरीज, राइट। सेकेंड इज मिनरल फ्यूल, देन जेम्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, देन मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड मेडिसिन एंड रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, राइट। अब नाउ वी विल डिस्कस, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, एंड एज यू नो दैट deficit, see, where if we import export, see, when India imports at a large, if we see the import is greater than export, then definitely the current account deficit will increase, and because of it the balance of payment जो है वो हमारे लिए unfavorable होगा, right? और if balance of payment is unfavorable for our country, then definitely our overall economic growth and development would affect negatively,
राइट। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, राइट, गवर्नमेंट हैज टेकन many steps, many initiatives and government has executed many policies. तो यहाँ पर टू कंट्रोल द BOP, टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट, और वी कैन से दैट टू increase the export and reduce the import, government of India has taken many steps through the government promotion scheme, so export promotion scheme, and we will see these export promotion steps one by one. First is establishment of export promotion zone, राइट। अब इंडिया से जो फूड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर सकें, उनका मैन्युफैक्चर इंटरनेशनल लेवल का हो सके, देयरफॉर एक्सपोर्ट, राइट, प्रमोशन जो थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, राइट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया सो दैट a good quality goods and services could be produced in India and we could export them. Second is establishment of sales. As you know that जो 2002 में, in 2002, right, because of the export import policy in 2000 जो जितने भी EPZ थे उनको किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या कर दिया था, इनको कन्वर्ट कर दिया था। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये स्पेशली जियोग्राफिकल एरिया होते हैं जहां पर गवर्नमेंट सर्टेन पॉलिसीज और सर्टेन इनिशिएटिव्स को परफॉर्म करती है ताकि जो है उत्पादन को बढ़ावा मिले और उसके फलस्वरूप एज अ रिजल्ट जो है एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिल सके। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 to 2020. We will discuss this in detail. Next is establishment of Exim Bank. In 1982, Exim Bank was established and it is a export, right, import bank, right, export import bank. As you know that for export and import we require foreign currency, only then we will be able to export or import a particular goods and services. So there is a dedicated body which is a Exim Bank which was established in 1982 so that the foreign currency could be supplied by it and we could means it would be very easy to export and import the goods and services. Next is establishment of agricultural export zone. As you know that India is an agricultural country, therefore we produce huge amount of agricultural raw material and if we produce, और जो है एग्रीकल्चरल जो है जितना भी प्रोड्यूस है अगर हम उससे कोई भी उसको प्रोडक्ट करके कोई भी प्रोसेस बनाए एंड इफ वी एक्सपोर्ट देम तो उससे एक हिसाब से जो है एग्रीकल्चरल में भी ग्रोथ होगी और फलस्वरूप हमारे एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ होगी और ओवरऑल जो है ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट जोन है दीज वर एस्टेब्लिश्ड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में हमारे स्टेट्स की कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए उनको स्टेट्स की जो कोऑपरेशन है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाई गई थी जो कि थी EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन। The export promotion industrial parks were established in India so that the participation of state could increase in the process of promotion of exports. Also joining the international trade agreement, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया उनको ज्वाइन कर रहा है ताकि हम भी जो है हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। आल्सो इंडिया इज ज्वाइनिंग फ्री ट्रेड एरिया सो दैट आर प्रोडक्ट्स कुड बी एक्सपोर्टेड एट अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, राइट, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस एंड स्टोर ट्रेडिंग हाउस, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस।
ये सब जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हाउस की बात करें या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये जितनी भी बॉडीज हैं इनकी स्थापना पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए की गई थी, ताकि जो स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट कुड बी प्रोड्यूस, और हम उन स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो है चाहे एग्रीकल्चरल रिलेटेड हो, राइट, जैसे हैंडलूम प्रमोशन काउंसलिंग हो जाएगा या फिर लेदर प्रमोशन काउंसलिंग हो जाएगा। इस तरीके से कई काउंसलिंग जो थी, मैनी काउंसलिंग वर एस्टेब्लिश्ड। इससे क्या होगा कि एक बेटर वी वुड बी एबल टू मेक अ गुड स्ट्रेटजी, और उससे फिर जो है हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, राइट, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है, देयरफॉर टू फुलफिल द राइट डिमांड द फोकस मार्केट स्कीम वर एस्टेब्लिश्ड, ताकि किसी विशेष जियोग्राफिकल रीजन में जो डिमांड है उसको पूर्ति करने के लिए वी कुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड increase our export. Also focus product scheme, then crucial balancing investment scheme. देखिए एक्सपोर्ट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, राइट, इफ देयर इज अ, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए, या हम कहें कि टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट आर प्रोडक्शन कुड इंक्रीज, आर एक्सपोर्ट कुड इंक्रीज, यहाँ पर जो क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये लाई गई थी, और इसका उद्देश्य था यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, और एज अ रिजल्ट जो है एक्सपोर्ट को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन जो है ये भी लागू किया गया था। सो दीज वर द मेजर्स और स्टेप्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, right? Now we will study import and export policy. See, we have understand import and export of India, and we have also understand that if अगर भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है एंड इफ वी हैव टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट, देन डेफिनेटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, इंपोर्ट से होगा। सो व्हेन एक्सपोर्ट इज लार्जर देन इंपोर्ट, ओनली देन जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होगा, कम होगा, राइट। और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो उससे ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे फेवरेबल में होगा, और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होता है देन डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर CAD कम कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो सिंपल, द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू reduce the current account deficit or making the balance of payment favorable for our country, also promoting the export and reducing the import is known as here import export policy. कुल मिलाकर इस पॉलिसी में हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, और इंपोर्ट अगर जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, राइट, उसको एक्सपोर्ट, वो उस इंपोर्ट को इजी बनाना, और अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वी कैन सब्सटीट्यूट, तो उसका फिर जो है सब्सटीट्यूट जो है डोमेस्टिक लेवल पर सर्च करना। तो यहाँ पर इनसे संबंधित जो पॉलिसी होती है उसको ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, और हमारे देश में इस पॉलिसी को DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो सिंपली वी कैन से दैट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विच इज आल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, इनिशिएटिव्स और directives prescribed by the DGFT of India for the promotion of goods and ease of imports of goods and services in our country, right? अगर हमारे देश में
हम यहाँ पर DGFT की बात करते हैं या फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड इज गाइडेड बाय द import and export policy. The foreign trade is guided by एग्जिम पॉलिसी, और उसके साथ ही जो रेगुलेटेड होता है उसके लिए भी एक लॉ है, और वो क्या है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992. सो सिंपली द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द India's EXIM policy, and also the foreign trade is regulated by the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. Now we need to understand here what is DGFT and what is this act. So we will see it. See, DGFT, Directorate General of Foreign Trade, is a main governing body, right? जो कि फॉरेन ट्रेड जो अफेयर्स है उसको देखती है, इसके साथ ही जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट करती है। तो DGFT यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है, राइट। इसके साथ ही जो एक्ट है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इसका क्या काम होता है? टू रेगुलेट एंड डेवलप द फॉरेन ट्रेड, राइट। कुल मिलाकर दिस एक्ट इज नोन टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी बॉटलनेक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको रेगुलेट करना, और इस माध्यम से फॉरेन ट्रेड को डेवलप करना ही इस एक्ट का यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 हैज रिप्लेस्ड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1942, right? So this was all about the for import export policy, right? Now we will see some basic regarding it. See, the foreign trade policy foreign जो ट्रेड पॉलिसी है it is of two type. First is free trade policy, और दूसरा हो जाएगा यहां पर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री ट्रेड पॉलिसी और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। देखो, हर एक जो देश है, एवरी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द इंपोर्ट। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम सभी कंट्रीज को अलाउ कर देंगे कि वो जो चाहे वो जो है गुड्स एंड सर्विसेज को हमारे देश में सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उससे होगा क्या कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पर जो भी कंपनी कर रही हैं या वॉट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज बीइंग प्रोड्यूस एट द डोमेस्टिक लेवल डेफिनेटली वुड बी आउट ऑफ द competition, because there are many countries which are developed, they have efficient machinery, they have modern technology, so using the modern technology, using capital, they can produce goods and services at a large amount, and definitely they can reduce the costs, and in the world trade they can sell their goods and services at a लो रेट। अब अगर हमको विदेशी कोई फॉरेन आइटम है वो अगर सस्ते दाम पर मिल रहा है, सो डेफिनेटली हमारे देश के जो सिटीजन है वो फॉरेन आइटम्स को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ चीफली फॉर देम। इसीलिए यहाँ पर जो विकसित देश हैं वो तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि द कंट्री विच इज टेक्निकली इम्प्रूव, जिनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दे हैव प्रोडक्शन उनकी जो यूनिट है वो एफिशिएंट है, राइट, जो कि लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन देशों में या कुछ देशों में जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी जो वो अपनाई जाती है, जहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, राइट। और दूसरी होती है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी हो जाएगी। अब सीधी सी मैंने बताया है कि अगर हम
किसी भी देश को, अगर हमारा कोई पड़ोसी देश है या कोई फॉरेन कंट्री है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हमारे देश में इंपोर्ट करने की परमिशन दे देंगे, सो डेफिनेटली हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं या हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो नेगेटिवली क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। इसीलिए हर एक देश जो है वो कई प्रकार के ट्रेड बैरियर्स जो है इंपोज करता है। ट्रेड बैरियर्स जैसे हो सकता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट रोकना है, राइट, विच इज़ अफेक्टिंग आवर डोमेस्टिक मार्केट, वो हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को, हमारे देश की गुड्स एंड सर्विसेज को अगर नेगेटिव इम्फेक्ट कर रहा है तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को हम हाइक कर सकते हैं। बट एट अ सर्टेन लेवल हम जो है उस पर उससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, राइट। या फिर हो सकता है कि कोई टेक्निकल जो है, टेक्निकल ट्रेड वार भी जो है, टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स भी जो है लगाई जा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पर गुड क्वालिटी, राइट, या किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम उसकी जो है क्वालिटी को फिक्स कर देते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडियन फ्रूट्स को, राइट, जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं वो इंडियन फ्रूट्स को एक तरीके से जम्स के आधार पर कि इनका जो है प्रोडक्शन है या इनकी पैकेजिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो है वो टेस्ट को पास कर सकें, तो वो क्वालिटी से संबंधित टेक्निकल बैरियर लगा देते हैं। या फिर कुछ जो कंट्री होते हैं वो कोटा से संबंधित जो है टेक्निकल बैरियर लगा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर देते हैं। या फिर अगर कोई देश जो है वो बहुत ही कम लेवल पर एट अ वेरी लो प्राइस अगर हमारे देश में डंप करता है तो हम उस पर एंटी डंपिंग जो है वो ड्यूटी भी लगा सकते हैं। या फिर हम किसी भी फॉरेन ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको साइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेन जो है फ्री ट्रेड FTA कैन नेगेटिवली हार्म आवर इकोनॉमी एंड आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो अगर कोई भी देश जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू ट्रेड जो है ट्रेड बैरियर हो जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगा, या नॉट ज्वाइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रोटेक्शनिस्ट जो है ट्रेड पॉलिसी कहेंगे, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो बेसिकली मैंने बताया है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है इट इज आल्सो नोन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द ट्रेड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ईयरली, राइट, और ये थी 1985 तक। सो टिल 1985 द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड ईयरली। तो 1985 तक तो जो है ईयरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट की जाती थी। बट इन 1985 when Rajiv Gandhi became the prime minister, then he initiated he has taken a new step, और उन्होंने अनाउंस किया कि अब से जो है वो 3 साल के लिए जो है फॉर 3 ईयर जो भी ट्रेड पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है, दैट वुड बी प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द 3 ईयर, राइट। और इसका फायदा क्या होगा कि इफ वी हैव इनफ टाइम देन डेफिनेटली वी कैन execute some measures, we can take some measures, we can execute the policies। भाई अगर हमको डेली ईयरली अगर हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना है तो हो सकता है कि पॉलिसी बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में ही काफ़ी समय चले जाए, और हम शॉर्ट टर्म ही पॉलिसी बनाएं। हो सकता है कि किसी गुड्स या सर्विसेज को रिप्लेस करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से जो ईयरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी थी उसको
अनाउंस किया गया 1985 में 3 ईयरली, राइट। सो 3 ईयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1985, जो कि 1992 तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा। नाउ यू नो वेरी वेल कि 1991 में जो है वो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक क्या हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 से हमारे देश में कई मेजर चेंजेस हुए थे, कई मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए थे, और जिसमें एक था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, राइट, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट जो था। इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि अब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको 3 ईयरली ना बनाकर वो क्या बनाई जाएगी, 5 ईयरली बनाई जाएगी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाएगी। सो इन द फर्स्ट टाइम 1992 a 5-year import and export policy was announced in India. So if we see the history, then the first 5-yearly import and export policy was announced in 1992 for till 1997. After that a new EXIM policy was announced in 1997, जो था वो 5 साल की ड्यूरेशन था 1997 से 2002 के लिए। देन 2002 टू क्या हो जाएगा 2007 के लिए। अब 2007 से यहाँ पर 2012 के लिए ना होकर यहाँ पर 2004 से 2009 के लिए जो थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। उसके बाद में 2009 से 2014 के लिए जो थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर 2014 के बाद में तो 2015 से 2020 के लिए जो थी वो फ्री जो थी एक्जिम पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, जैसे हम कहते हैं न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया या न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इसकी जो वैलिडिटी थी वो 31 मार्च 2020 तक थी। बट बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन द न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021। और अब उसके बाद में जो नई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो बनाई जाएगी 2021 to 2026। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ एक्जिम पॉलिसी और वी कैन से दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। अब यहाँ पर जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट ने हो सकता है किसी पॉलिसी में कोई इनिशिएटिव लिया हो जिसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो कई लेक्चर्स थे उसमें हमने कुछ जो स्टेप्स थे उनके बारे में भी पढ़ा है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि एक्जिम पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स थे EPZ उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफ़र या उनको उसमें परिवर्तित किया गया था, राइट। अब हमारे लिए जो है ये जो है 2021 to 2026 दिस पॉलिसी इज़ अंडर प्रोसेस। ये पॉलिसी जो है वो अभी बन रही है और हमारे पास में जो है वर्तमान समय में कौन सी है 2015 to 2020। देयरफॉर हमें इस पॉलिसी के बारे में A to Z जानकारी होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली द न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2015 to 2020 एंड वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी, राइट। सो यहाँ पर जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इससे 11 मार्कर क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है। देयरफॉर वी नीड टू प्रिपेयर दिस पॉलिसी इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, right? So let's see the new foreign trade policy or the new import export policy of 2015 to 2020. See, this policy was started from 1st April 2015 और इस पॉलिसी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि this policy was designed keeping in the mind make in India vision, राइट।
कहने का मतलब ये है कि बिफोर 2015 हम काफ़ी सारे जो है कैपिटल गुड्स को जो है इंपोर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर हमारे देश को सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एवं इंडिया से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में उनको बेचने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हमारे देश में शुरुआत किया गया था, ताकि हमारे देश में जो है जितने भी गुड्स हैं उन पर, जैसे सीधी सी बात है, कई आइटम्स जो चाइना में बनते तो उन पे लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, वैसे ही वी कुड प्रोड्यूस many special goods and services and we could fulfill the domestic demand and we could export these goods and item also। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए या जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ध्यान में रखकर ही द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 to 2020 वाज डिजाइंड एंड अनाउंस्ड। अब हो सकता है कि इसके जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछे जाएं, तो हम इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे भी चर्चा करेंगे। सो द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज एग्जीक्यूटेड 1 अप्रैल 2015 और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, राइट। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होगा, राइट। तो ये था पहला उद्देश्य। अब इसका कुल मिलाकर ये था, मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा सो डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू इंक्रीज आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली नई इंडस्ट्रीज वुड बी एस्टेब्लिश्ड, और नई इंडस्ट्रीज जब एस्टेब्लिश होंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी फोकस करना, और ओवरऑल जो है हमारे एक्सपोर्ट है उनको भी बढ़ावा देना, राइट। इसके साथ ही प्रेफरिंग द पेपरलेस वर्क, राइट, दिस वाज आल्सो ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद में यहाँ पर ये डाटा आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, राइट। जो है वर्ल्ड लेवल पर एवरी ईयर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, राइट, वो 300 से लेकर 500 बिलियंस के बीच में हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको बढ़ाकर कितना कर देना, 900 जो बिलियन है इसको 2019-20 तक कर देना। टू रीच द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको 900 बिलियन तक जो है 2019-20 तक जो है वी कोड एक्सपोर्ट 900 बिलियन बाय 2019-20। इसके साथ ही जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है जिसमें भारत का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो केवल कितना है, 2%। सो द शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एक्सपोर्ट उसको 2% से बढ़ाकर कितना कर देना, 3.5% कर देना, राइट। इसके साथ ही जो पॉलिसी है उसको भी 2.5 ईयर्स में क्या करना, उसको अनुअली, पहले अनुअली उसको क्या किया जाता था, रिव्यू किया जाता था, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए उसको 2.5 ईयर्स में उसको रिव्यू करना। इसके साथ ही हम जो है स्पेसिफाइड या स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें और उसको एक्सपोर्ट कर सकें। इसके लिए जो हमारे देश में एस्टेब्लिश्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स हैं उनको असिस्टेंस देना, ताकि हमारे देश में जो स्पेशल या स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो SEZ के माध्यम से और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है AEZ के माध्यम से प्रोड्यूस हो सकें एंड वी कुड एक्सपोर्ट देम। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस काउंसिल, और बिजनेस काउंसिल की स्थापना होगी तो वो किसी भी सेक्टर विशेष के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेहतर स्ट्रेटजी बना पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो इनका भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ऑल्सो
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, ताकि जो स्पेशल और स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपग्रेड किया जाए और जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाया जाए, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 टू 2020, इसकी जो है सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है इस पॉलिसी के सेलिएंट फीचर्स ही हमसे 11 नंबर में पूछी जाए। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 टू 2020। इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि थ्रू द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी MEIS scheme and SEIS scheme have been introduced and executed. The MEIS, which is means Merchandises Export from India scheme. Through this scheme, the specified goods would be produced in India. Then the specified goods जो है उसको भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो स्पेसिफाइड गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए MEIS जो है स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड थ्रू द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके साथ ही जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, नोटिफाइड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट, राइट, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड और हैव बीन लॉन्च्ड इन दिस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सेकेंड, इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि हमारे देश में लंबे समय से जो कैपिटल गुड्स है, वी इंपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और इससे हमारा CAD जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दो उद्देश्य रखे हैं कि इस स्कीम के तहत जो है कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसको कैपिटल गुड्स को प्रमोट करने के लिए एक तो यहाँ पर जो है स्पेशल एक्सपोर्ट कमिटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू कितना कर दिया है 70.5% जो है जनरल लेवल पर इसको क्या है ले आए हैं, राइट। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन द प्रायोरिटी टू परचेज द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स ओनली। अगर हमारे डोमेस्टिक लेवल पर कभी भी जो है कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट में, तो हमेशा जो है प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यहाँ पर इंडिजीनियस जो है मैन्युफैक्चर्ड हैं उनको यहाँ पर उनसे प्रोक्योर करने के लिए यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स को जो है उसका जो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने के लिए जो स्पेशल एक्सपोर्ट कमिटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू 75% और इसको जनरल एक्सपोर्ट के 75% पे ले आए हैं, ताकि जो कैपिटल गुड्स है उसका प्रोडक्शन भी हो सके, राइट, हम उसके प्रमोशन को भी बढ़ा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी जब प्रोक्योरमेंट की बात होगी तो वी विल प्रोक्योर द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स ओनली। अब नेक्स्ट की बात करें तो इस नीति में तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर जो रक्षा उत्पाद हैं, राइट, या हम ये कहें कि जो डिफेंस आइटम्स हैं, राइट, डिफेंस आइटम्स हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी आइटम्स के साथ साथ जो ई-कॉमर्स से संबंधित प्रोडक्ट हैं, राइट, जैसे ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लाइक यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, लेदर्स हो जाएगा, फुटवियर हो जाएगा, टॉयस हो जाएगा, राइट। तो टॉयस, फुटवियर प्रोडक्ट्स, बुक्स, इनको जो है जो जितने भी जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैं इनको MEIS स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, राइट। इसके साथ ही भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं और हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं उनके भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का इसमें जो है लक्ष्य रखा गया, राइट। इसके साथ ही जो स्पेशल एंड स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो SEZ यूनिट हैं, राइट, उनसे रिलेटेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको भी इस नीति में क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, राइट, ताकि जो SEZ यूनिट्स हैं वो अपने
इंक्रीज जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए भी उनको असिस्टेंट दिया जाएगा ताकि हमारे जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि देखिए जब कभी भी इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता था तो उनको पहले सर्टिफाइड करवाना होता था गवर्नमेंट से, और ये जो है प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, जिसकी वजह से कई जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो इस प्रोसेस की वजह से फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपोर्ट करने में टेक्निकल होती थी। इसको सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व किया है यहाँ पर अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, राइट। तो अब जो मैन्युफैक्चर हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, राइट, वो अब यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल्फ सर्टिफाइड किया जा सकता है, और सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे हैव, उनके लिए इजी एक्सेस हो जाएगा, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब इस स्कीम के तहत उनको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, और इससे इंटरनेशनल पर उन प्रोडक्ट्स को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही जो जितने भी एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, पार्क्स हो जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, इनको भी एक तरीके से स्पीडी क्लियरेंस दिया जाएगा। तो स्पीडी क्लियरेंस के वजह से उनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगी, ये सब स्पीडी होगा, तो उससे भी जो है हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, राइट, ऑफ 2015 to 2020। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।